से की और मैं अभिनंदन करता हूँ। On the outset, I thank the Believers Brethren Assembly, Mahilpur, and particularly Evangelist Jagdev Kumar for granting me this opportunity to be with you in this manner and minister the word of God. और परमेश्वर के वचन की सेवा करने के लिए मैं खासकर माहिलपुर ब्रदरन असेंबली का मैं धन्यवाद करता हूं, वहां के दास भाई जगदेव कुमार जी का भी धन्यवाद करता हूं। As you read in the flyer, I am from Christian Brethren Assembly, Kuwait. जैसे आपने ये मशहूरी में दिखा था कि मैं क्रिश्चियन बिलीवर असेंबली कुवैत से हूं। We had the privilege of having Brother Gurdeep Singh from your assembly with us for some time while he was in Kuwait. और भाई गुरदीप सिंह जो आपके असेंबली से हैं, हमारे असेंबली में कुछ समय पहले वो हमारे यहाँ थे। It was that connection and the recommendation of Brother Thomas Abraham provided me this opportunity. और इसके लिए यही एक कारण है कि हमें कि आप लोगों के साथ मिलने के लिए और प्रभु का संगति करने के लिए। I bring greetings from all the members of Christian Brethren Assembly Kuwait. मैं क्रिश्चियन ब्रदरन असेंबली कुवैत से आप सबों को ग्रीटिंग्स लेके आता हूँ, शुभकामनाएं लेके आता हूँ। We often remember you in our prayers. और हमें आपके लिए हम प्रार्थना में याद कर रखेंगे। As announced, the topic for this 3 days Bible study is knowledge of truth. और जिस प्रकार से आज की बाइबल स्टडी का जो शीर्षक है कि सत्य की ज्ञान के बारे में है। We shall not be having a theological study on the subject. हम ये theological study नहीं होगा इस सब्जेक्ट का। I would like to bring to your notice and knowledge and understanding some practical thoughts in its simplest manner. कुछ तत्व है जो सत्य ज्ञान के बारे में आज वो आपके बीच में मैं प्रकट करना चाहता हूँ। Initially, it was arranged for 2 days. पहले ये 2 दिन के लिए इसका इंतजाम किया गया था। But I found it difficult to compress the content of the topic in 2 days. और परेशानी हो रही थी कि 2 दिन में इस सब्जेक्ट को किस तरीके से पूरा। Otherwise, I had to run fast. Otherwise, I had to run fast. Can you hear me, brother? Yes, bro. Something problem. Brother Johnson lost his connection, I सुन think. सकते हो? Yeah, I can hear you. Okay, fine. If I go very fast, then you will not be able to get what we discuss and study. अगर मैं इसको तेजी से जाऊं तो ये स्टडी को आप समझ नहीं पाओगे। Therefore, I requested for making it for 3 days. So we will follow the principle: slow and steady win the race.
और हम ये धीरे से और आगे बढ़ेंगे ताकि हम इसको पूरा करें। Shall we turn to 1 Timothy chapter 2 and verse 4? First Timothy chapter 2 verse 4. Reads like this: God our Savior, who wants all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. और वह ये चाहता है कि सब मनुष्य हो और वे सत्य की भली भांति पहचान ले। We all have desires for the results of what we invest the time, energy, and money for something. जो कुछ हम बांटे Is it clear? साफ है। When we send our children to school, we have desire concerning their education and future. Did not come, brother? When we send our children to school, Yep. Can you hear me? हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। We have a desire concerning their education and future. और हमारा एक हृदय में तमन्ना होता कि उनके ये पढ़ाई के सिलसिले में When we cultivate our field, we have a desire for better crops. और इसी प्रकार जब हम अपने खेतों को जोतते हैं तब हम ये आश रखते हैं कि एक अच्छी फसल हमारे उस खेत में से प्राप्त हो। When we are employed in a company, we have a desire of getting the best salary. और जब हम अपने हैं तब हम हमेशा एक अच्छा एक हमारा सैलरी या तनख्वाह की आस रखते हैं। If we buy a wristwatch, we have a desire that it should show the accurate time. अगर हम एक अच्छी घड़ी लेते हैं तो हमारा एक आशा होता है कि ये जो अच्छी घड़ी खरीदी इसमें समय बिल्कुल एक निर्धारित और सिद्ध सही हो। Well, these are the primary purposes of our effort and investment. और ये जो बातें हमारे खास और जरूरी बातें हैं जो हमारे कार्य में या हमारे लक्ष्य को दिखाता है। If that is not fulfilled, we become disappointed and sad. और अगर हमारे आस के जरिए वो आशा पूरी नहीं होती तो हम निराशा में चले जाते हैं, दुखित होते हैं। Am I right? Am I right? क्या जो कहा वो सही है? Just think of the situation that you are employed in a company. आप ऐसा सोचे आप एक कंपनी में आप नौकरी करते हैं। Your salary is very low, but you are given a very comfortable, costly chair to sit. और आपकी जो तनख्वाह वो बहुत मामूली तनख्वाह है, पर जिस कुर्सी में बैठे हैं वो बहुत महंगी है। Will you be happy there? क्या आप उस कुर्सी में अगर बैठे तो क्या आप वहां खुश हैं, आरामदायक हैं? Will you say, even though the salary is very low, it's okay, but I have a very good chair to sit?
अगर आप कह रहे कि भाई मेरे ये तनख्वाह तो अच्छी है, पर मेरा जो बैठने का जो कुर्सी मिला है वो बड़ा आरामदायक है, Will you think like that? क्या आप ऐसे सोचेंगे? Will you be happy there? क्या आप वहां खुश होंगे? Another thing, when our investment is more, our expectation is also is more. और एक बात यहाँ की, जब हम अपना जो खर्चा है जो हम किसी चीज में लगाते हैं तो उसी को ज्यादा है उस खर्चे को, तो हम उसमें उस खर्चे के बल पर हम आस भी उस प्रति हम ज्यादा रखते हैं. Just imagine you have purchased a watch for 100 rupees. और अगर आप उदाहरण के तौर पे अपने एक घड़ी खरीदा 100 रुपए में, After few weeks, it did not work properly. It's not showing accurate time. और कुछ हफ्ते के बाद आप देखते हैं कि वो घड़ी सही प्रकार का समय नहीं दिखा रहा जिसकी आप आस रखते थे. I'm sure you will be very sad. और मुझे पक्का यकीन है कि आप बड़े निराश होंगे. Think about, you purchased a Rado watch which costs about 1 lakh rupees. और उदाहरण के तौर पे आप सोचिए, आपने एक रैडो कंपनी का एक घड़ी खरीदा जो कि करीबन 1 लाख रुपए का है. That also was showing problem and did not show the accurate time after few weeks. वो भी 2 हफ्ते के बाद वो घड़ी भी एक सही समय नहीं दिखा रहा था और वो भी थोड़े उसमें खराबी नजर आई. You will become disappointed and sad. और आप निराश हो जाएंगे और दुखित होंगे. My question is this: will the disappointment and the sadness you feel will be same for the watch you purchased for 100 rupees and for the watch you purchased for 1 lakh rupees? और जो दुखी और निराशा ये समांतर में होगा कि जब आपने 100 रुपए की घड़ी ली और यहाँ तक कि आपने जब 1 लाख की घड़ी ली, दुख जो है वो समांतर ही होगा. Now for 100 rupees watch, you say, it costs only 100 rupees. It's okay if it is not working. अगर 100 रुपए की घड़ी लिए तो आप जब खराब हो जाए तो आप कहेंगे, अरे चलो 100 रुपए की तो घड़ी है, कोई बात नहीं, खराब हो गया तो. For the Rado watch you purchased for 1 lakh rupees, will you say, kya yaar, it's only 1 lakh rupees, it doesn't matter? और फिर अगर 1 लाख रुपए घड़ी खड़ी हो तो आप ऐसे बोलेंगे, ओ कोई बात नहीं, ये तो 1 लाख रुपए की थी, खराब हो गई, ऐसे क्या आप बोलेंगे? What I mean to say is, when the investment, when the price is more, our expectation is also is more. और मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब उस की कीमत जब ज्यादा है, जैसे 1 लाख रुपए के लिए है, तो आपका जो एक्सपेक्टेशन या आप जो आस रख रहे हैं, आशा कर रहे हैं, वो भी आपके उस कीमत के अनुरूप ज्यादा ही होगी. God created us in his own image and likeness. That's what we read in Genesis chapter 1. और उत्पत्ति 1 में अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को अपने रूप और स्वरूप में बनाया है. The purpose of creating us in God's image was that we should worship him and serve him. और परमेश्वर का उद्देश्य जो इंसान को बनाने का था कि इंसान परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में वो करे. We know that our first parents, Adam and Eve, committed sin and they failed in fulfilling God's purpose. और हमें मालूम है कि हमारे आदि माता पिता आदम और हवा किस रीति से वो पाप में गिरे. And they did not fulfill the purpose of God in serving and worshiping God. और उन्होंने परमेश्वर का जो मकसद है, परमेश्वर का जो आज्ञा है, उसको पूरा नहीं किया. Now we see God delivered us, God saved us by the precious blood of Lord Jesus Christ.
और हम देखते कि परमेश्वर ने हमें उद्धार किया, हमें बचाया उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने से। When humanity became sinners by the sin of the first parents, Adam and Eve, और जब मनुष्य के उस पाप का जो आरंभ हुआ, जो उसके आदि माता पिता आदम और हव्वा के जरिए, Lord came to this world in the form of human being. He took upon himself the sin of the whole universe and he died at the cross. और परमेश्वर ने इंसान के रूप में प्रभु यीशु मसीह के जरिए इस संसार में आए, और आने का कारण ये था कि वो समस्त मानव जाति के पापों को अपने बेटे के ऊपर डाल दिया। And the Lord has purchased us from the penalty of sin by his precious blood that he shed at the cross of Calvary. और उस पाप की मजदूरी के कारण अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से उसने हम लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं खरीद ले लिया, मोल लिया। Oh, the purpose was that we should be saved in order to become the children of God, to fulfill God's purpose concerning humanity. और परमेश्वर का जो मकसद था कि वो हमें बचाए, और उसको प्रभु के उस लहू से खरीदा गया कि वो बचाए हुए और खरीदे गए लोग परमेश्वर की आराधना और उसकी उपासना कर सके। So we see the purpose of creation and the purpose of redemption are same. It is to worship God and to serve God. और जो परमेश्वर का मकसद है, जो उस उद्धार का और उस मुक्ति का, वो एक है कि बचाए हुए लोग परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में कर सके। So when we come to the verse that we read, 1 Timothy chapter 2 verse 4, और पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय का दूसरा अध्याय का 4 आयत में, there we see the desire of God concerning all the people. और ये आप इंसान के, मनुष्यों के उद्धार के लिए जो परमेश्वर का जो इच्छा था उसके बारे में हम देखते हैं। There it says that it is the desire of God that all men should be saved, all people should be saved. और वो परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर जो चाहता था कि सारे मनुष्यों को छानबीन कर सके। Also the desire of God is that all those who are saved should come to the knowledge of truth. और परमेश्वर का यह इच्छा था कि जो भी बचाए गए हैं, जो जिनका भी उद्धार हुआ है, उद्धार पाए हुए लोग उस सत्य को भली भांति पहचान सके। Therefore, my dear brothers and sisters, this is what I want to tell you as the first thought. Sorry, brother. Can you repeat, brother? Yes. So I would like to say this as the first thought for this class. बहुत बड़ी कीमत आपको खरीदा है, और खरीदे हुए आपसे भी यही बड़ी उम्मीद रखता है कि किस रीति से वो उम्मीद पर हम खरे उतरे। We saw in the introduction that when the cost is high, the expectation also is high. We saw that with regard to the Rado watch. और हमने जैसे रैडो घड़ी में हमने देखा कि क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा थी और उसकी जो अपेक्षा भी जो है वो भी ज्यादा है, इसीलिए ये बलिदान के जो कीमत ज्यादा है,
और वही परमेश्वर अपेक्षा भी हमसे करता है। When God has purchased us with such a great price, the blood of his dear son, Lord Jesus Christ at the cross, और जब प्रभु यीशु मसीह ने जो कीमत परमेश्वर ने अदा किया अपने बेटे के, जो बहुत ज्यादा कीमत थी, it is the desire of God that all should come to the knowledge of the truth. और यही परमेश्वर की इच्छा है कि हरेक जन उस सत्य को जान ले। If we are not able to fulfill that, we are disappointing God. We are making the heart of God sad. अगर परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा नहीं करते, हम उस सत्य के ज्ञान को नहीं समझते, तब हम परमेश्वर को निराश करते हैं। It is the desire of God concerning each one of us, my dear brothers and sisters. It is the desire of God concerning you that you should come to the knowledge of truth. ये परमेश्वर की इच्छा है हर एक उद्धार पाए लोग कि वो परमेश्वर के उस सत्य के ज्ञान को समझ लें और उसको जाने, और यही उसकी एक बड़ी इच्छा है। If you are not able to come to the knowledge of truth, you will not be able to lead a victorious Christian life. अगर वो उद्धार पाए व्यक्ति इस सत्य के ज्ञान को नहीं समझते और उसको पूर्ण रीति से नहीं ग्रहण करते, आप अपने आत्मिक जीवन में विजयिता के ओर नहीं जा पाएंगे। God did not want anybody to lead a defeated life. परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी उद्धार पाए व्यक्ति वो एक पराजय का जीवन जिए। God wants you to lead a victorious Christian life in the respective places God has placed you, dear ones. परमेश्वर चाहता है कि आप सब एक विजयी पूर्व जीवन जिए जहां परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। If you are not doing so, you are disappointing God. You are making the heart of God sad. और अगर आप उस इच्छा के प्रति ऊपर आप उसको पूरा नहीं करते, तो फिर आप परमेश्वर के हृदय को निराशा या ठेस पहुंचाते हैं। Also in this verse we see it is the desire of God that all should be saved. हमने देखा कि परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य उद्धार पाए। Therefore Christ died for all. इसलिए प्रभु यीशु मसीह हर एक मानव जाति के लिए मारा गया। Also the desire of God is that all the saved ones should come to the knowledge of truth. और यही परमेश्वर की इच्छा है कि जो उद्धार पाए हैं वो सारे उद्धार पाए लोग सत्य के वो ज्ञान को समझ लें। Therefore God has made provision for all those who are saved to come to the knowledge of truth. और इसीलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक बात को मुहैया किया है कि हर एक उद्धार पाए व्यक्ति सत्य के ज्ञान को समझ सके। Therefore we can see here that it is the desire of God that all should come to the knowledge of the truth. इसलिए आज हमने यहाँ देखा कि हर एक उद्धार पाए व्यक्ति को ये जरूरी है कि हर एक उद्धार पाए व्यक्ति को समझे। Also we see there it is important for God to see that all are saved, and it is as important as that is that all coming to the knowledge of truth. और ये एक खास और महत्वपूर्ण बात यह है, परमेश्वर के दो इच्छाएं हैं। एक इच्छा जो हर एक इंसान उद्धार पाए, दूसरी इच्छा ये है कि हर एक उद्धार पाए हुए इंसान परमेश्वर के वो सत्य के ज्ञान को समझे और सीखे। Both the desires are equally important, so we cannot neglect the second desire. We cannot neglect or take lightly growing in the knowledge of truth. और ये दोनों जो इच्छाएं हैं
वे दोनों गंभीर पूर्व है और बहुत बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। एक परमेश्वर की इच्छा जो उद्धार पाए, और उद्धार पाए लोगों को ये बहुत बहुत जरूरी है कि वो दूसरी इच्छा को भी पूरा करे कि परमेश्वर के सत्य के ज्ञान में बढ़ते जाए। When God sees things as serious, we also should see as serious. और जब परमेश्वर इन बातों को बहुत गंभीर रीति से वो देखते हैं, हमें भी चाहिए कि वो गंभीर रीति से देखने बातों को हम भी गंभीरता के साथ देखें। There also we see that for God, all should come to the knowledge of truth. और ये एक सत्य बात है कि परमेश्वर चाहता है सब लोग जो उद्धार पाए वे परमेश्वर के सत्य के ज्ञान को और समझें। It is not for evangelists, it's not just for teachers, it's not just for elders. It is said that all should come to the knowledge of truth. ये सत्य के ज्ञान को सिर्फ सुसमाचार प्रचारक के लिए नहीं, सिर्फ प्राचीनों के लिए नहीं, या सिर्फ शिक्षा देने वालों को नहीं, बल्कि हरेक जो उद्धार पाए हुए प्रभु के लोगों से खरीदे हैं, उन सब के लिए ये सत्य के ज्ञान को समझने का हक है। So God sees it as very serious that we should come to the knowledge of truth. और ये परमेश्वर इस बात को बड़े गंभीर से देखते हैं, और ये गंभीर इच्छा भी है कि हर एक उद्धार पाए व्यक्ति सत्य के ज्ञान को समझ ले। If we neglect that, oh dear ones, let me tell you, we shall be held accountable for that. अगर हम इस बात का तिरस्कार करते हैं, सत्य के ज्ञान को समझने के लिए बहुत हल्का लेते हैं, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वे उद्धार पाए लोग वो अपना हिसाब न्याय के दिन देना पड़ेगा। So our topic is coming into the knowledge of truth. हमारा आज का विषय है कि उस सत्य के ज्ञान के ओर आना। We will ask some questions and find the answer to study the topic. और हम कुछ सवाल करेंगे और उस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे ताकि हम इस विषय को शिक्षा ले सकें। So we'll be having a question answer session. हमें सवाल जवाब सेशन भी होगा। But the difference is I will be asking the question and I'll be giving the answer. और यहाँ जो फर्क ये है कि मैं ही आपसे सवाल पूछूंगा और मैं ही उसका उत्तर भी मैं ही दूंगा। So I will assume your questions, I will ask that and I'll try to answer that from the word of God. और मैं जो सवाल जो पूछूंगा वो परमेश्वर के वचन से है और उस वचन को से ही मैं उसका जवाब दूंगा। So now you feel relaxed because I said I'll ask questions and I'll say the answer also. अभी आप आराम से बैठे क्योंकि मैंने कहा कि सवाल भी मेरा है और उस सवाल का जवाब भी मैं ही दूंगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। But remember, we are in the presence of God and it is God who is speaking to us. और याद रखिए कि हम सभी समय परमेश्वर की उपस्थिति में विराजमान हैं, इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक प्रभु की उपस्थिति को समझे। So we some questions and we see its answers. आइए हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद उसके उत्तर को भी सुनेंगे। Ready? क्या आप तैयार हैं? Here we go. The first question. पहला सवाल ये है, What is truth? सच्चाई क्या है, सत्य क्या है? We saw in the title that it is the desire of God that we should come to the knowledge of truth. या हम उसका शीर्षक देखा था कि परमेश्वर का जो इच्छा है वो कि हर एक परमेश्वर के सत्य के ज्ञान को जाने। If only we can come to the knowledge of truth when we know what the truth is. और वो तभी हम उस सत्य के ज्ञान को समझ सकते हैं जब तक हम सत्य को ना समझ लें। So the first question, what is truth?
और पहला सवाल है सत्य क्या है, यानी सच्चाई क्या है। In John's Gospel, chapter 18 and verse 33, सॉरी, in John's Gospel, chapter 18, verse 38, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 का 38 अध्याय, there we see Pilate asking that question to the Lord Jesus Christ. और पिलातुस ने एक सवाल पूछा था यीशु मसीह से। John's Gospel, chapter 18, verse 38. यूहन्ना 18 उसको 38 में हम देखते हैं। Pilate said to him, "What is truth?" And after saying this, he came out again to the Jews. John 18:38. और उसके बाद वो सत्य जानने के बाद वो यहूदियों के हाथों में उसे सौंप दिया। There we see Pilate was asking, "What is truth?" और पिलातुस उससे क्या कह रहा है, सत्य क्या है। But we do not see Lord Jesus giving answer to him. और हम यहाँ देखते हैं जब वो ये सवाल कर रहा था, यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसका सवाल का जवाब नहीं दिया। Do you know why the Lord did not give the answer? Can you hear me, brother? Yes. Do you know why Jesus did not answer that question? क्या आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने उत्तर क्यों नहीं दिया पिलातुस को? Well, even I don't know. क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम, Because it is not mentioned there in the word of God. क्योंकि ये प्रभु के वचन में लिखा नहीं है। But I see two possibilities. I would like to say that. पर यहाँ दो बातें हैं जो मुमकिन करता है उसके जवाब के लिए। After asking this question, we see Pilate left the place. He did not wait for the answer. और यहाँ हम देखते हैं जब उसने सवाल किया तब उसी समय सवाल के बाद वो ठहरा नहीं, उस जगह को छोड़कर वो बाहर गया। He was not interested in getting an answer. और पिलातुस यीशु मसीह से वो उत्तर नहीं चाहता था। Therefore, the Lord did not give him an answer. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उसे उत्तर नहीं दिया। Secondly, दूसरी बात, the Lord knew that he is not a genuine seeker of truth, even though he asked that question. और प्रभु जानता था पिलातुस की वो सचमुच सच्चाई की खोज में नहीं है, इसीलिए वो जो सवाल पूछ रहा था उसमें किसी भी प्रकार की कोई बड़ी बात नहीं थी। So the Lord did not give him an answer. इसीलिए परमेश्वर ने उसका जो है जवाब नहीं दिया। Oh dear ones, let me tell you a truth now. मेरे प्रिय जनों, मैं एक सत्य को यहाँ बताना चाहता हूँ। Just as Pilate did, if you are not attentive to this question, God will not answer you even now. अगर आप इस सवाल को बड़े ध्यानपूर्वक नहीं पूछते और नहीं समझते तो परमेश्वर आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे। If you are not keen to understand what the truth is, the Lord will not speak to you even today. अगर आप इस सत्य को बड़े ध्यानपूर्वक So let's be attentive in the presence of God wherever we are and earnestly seek to know what the truth actually is.
जॉनसन It was भाई, not clear. आवाज नहीं आ रहा है। Hello. Okay. Is it okay? Yeah. Okay. The Lord did not give Pilate an answer because he was not a genuine seeker. क्योंकि उसको यीशु ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो सत्य को बड़े गंभीरता से नहीं ले रहा था। The Lord did not give Pilate an answer because he was not attentive to the answer. और ये पिलातुस को यीशु मसीह ने उत्तर इसलिए नहीं दिया क्योंकि पिलातुस उस सवाल को बड़े ध्यानपूर्वक नहीं पूछा। Oh, my dear brothers and sisters, this can happen even today in your life too. और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये आपके जीवन में भी इस प्रकार मुमकिन हो सकता है। So let's be attentive in the presence of God wherever we are and be earnestly seeking to know what actually the truth is. इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप जहां कहीं भी आप इस दुनिया में हैं, वहां हमेशा बड़े ध्यानपूर्वक सत्य को जानने के लिए विराजमान रहें। Then the Lord will truly speak to you today. और तभी प्रभु यीशु मसीह आपसे सचमुच हृदय से बात करेंगे। May the Lord help us. परमेश्वर इसके लिए हमें मदद करे। Even though Pilate was not given an answer, we have the answer in the Word of God. यीशु मसीह ने पिलातुस को जवाब नहीं दिया, पर हमें What is truth? सच्चाई है। First of all, the truth is Lord Jesus Christ himself. सच्चाई जो है, सत्य खुद प्रभु यीशु मसीह है। In John's Gospel, chapter 14, verse 6, John's Gospel, chapter 14, verse 6, Sorry, can you repeat it? John's Gospel, chapter 14, verse 6, यौना रीति से समाचार उसका 14 अध्याय। that the Lord said, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सत्य मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। So Jesus himself is the truth. यहाँ यीशु मसीह ही वो सत्य है। And secondly, और दूसरी बात, the Word of God is truth. और परमेश्वर का वचन सत्य है। In John's Gospel, chapter 17, verse 17, यौना उसका 17 का में the Lord said, sanctify them in the truth. Your word is truth. तेरा वचन सत्य है। So we saw two aspects of truth in the Word of God. दो तरीके से सत्य को बताया गया है। One is Lord Jesus Christ, एक है प्रभु यीशु मसीह खुद सत्य है, and second is the Word of God. और दूसरा है परमेश्वर का वचन सत्य है। Well, in 2 Timothy chapter 2, verse 4, और दूसरा तीमुथियुस 2:4 में we saw God wants all to come to the knowledge of truth. और परमेश्वर चाहे कि हर एक जन परमेश्वर के उस उद्धार में आ जाए। What is truth? सत्य क्या है? Jesus Christ and the Word of God. यीशु मसीह और परमेश्वर का वचन सत्य है।
So now let's replace the word truth with Jesus Christ and the word of God. और यहाँ जो सत्य है वो यीशु मसीह और परमेश्वर का वचन है जो सत्य है. Therefore, we can read the verse as God wants all to come to the knowledge of Jesus Christ. और परमेश्वर यहाँ चाहते हैं कि हर एक जन जो उद्धार पाए वो यीशु मसीह जान ले. God wants all to come to the knowledge of the word of God. और परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन परमेश्वर के वचन के ज्ञान को समझ लें. Oh dear ones, when we read in the word of God that God desires that all of us should come to the knowledge of truth, और जब हम परमेश्वर के वचन में जब जैसे पढ़ा कि परमेश्वर का ये चाहता है कि सारे मनुष्य उद्धार पाए और सत्य की भली भांति को वो पहचान जाए. what it means is that God wants all the saved ones to grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ and in the knowledge of the word of God. और परमेश्वर के जरिए This is the desire of God concerning all those who are purchased with a great price. और यही परमेश्वर का हृदय की इच्छा है कि जिन जिनों को परमेश्वर ने बहुत बड़ी कीमत दे के खरीदा है, हर एक खरीदे उद्धार पाए लोग परमेश्वर के सत्य के ज्ञान को वो जान ले. This is the desire of God concerning all those who are purchased by the precious blood of the Lord Jesus Christ, who died at the cross of Calvary for our sins. और यही परमेश्वर का इच्छा है कि जिन लोगों को उस कल्वरी क्रूस में बहाए गए लहू के जरिए जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर से निकला, कि वो खरीदे हुए लोग परमेश्वर के सत्य के ज्ञान को हर एक ये ज्ञान को समझ लें. If we fail in that, we are disappointing God. We are making the heart of God sad. अगर हम इस बात में प्राप्त करने में नामुमकिन रहे या पराजय हो गए तो हमें परमेश्वर के हृदय को दुखित नहीं करते, बल्कि हमें अपना हिसाब भी देना पड़ सकता है. In the example I told you about the watch, how much disappointed you become when you see that the Rado costly watch is not working properly. और जिस प्रकार मैंने कहा कि इतने महंगी घड़ी जो रेडो हमने खरीदा और वो जब रेडो को ये घड़ी खराब हो गया तो हम कितने निराश हो गए, क्योंकि हमने इतनी बड़ी महंगी घड़ी से बहुत कुछ अपेक्षा किया था. If so, can you imagine the disappointment, the sadness in the heart of God when we fail in growing in the knowledge of truth, growing in the knowledge of Lord Jesus Christ, growing in the knowledge of the word of God? और अगर ऐसे नहीं हम पाते कि हम प्रभु के सत्य के उस ज्ञान में बढ़े और प्रभु के वचन के सत्य के ज्ञान में बढ़े तो ये बहुत निराशाजनक हो सकता है. Oh, today evening, my dear brothers and sisters, आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज ये शाम के समय as we are in the presence of God this evening, और जबकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद हैं इस शाम के समय, let's tell to the Lord from the bottom of our heart that, Lord, we understand the importance of knowing the truth. और हम परमेश्वर आपके आज शाम में आपके वो सत्य के ज्ञान का जो महत्व है वो जानने के लिए प्रभु ने. Oh Lord, we understand how much it will disappoint you, how much it will make you sad if we fail to grow in the knowledge of Lord Jesus Christ and in the knowledge of the word of God. प्रभु जी, ये हम कितना दुखित होगा अगर हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में और परमेश्वर के वचन के सत्य के ज्ञान में ना बढ़ पाए तो हम आपके हृदय को दुखित करते हैं. Let's sincerely tell to the Lord, Lord, we are sorry
for disappointing you, for making you sad in the days past. इसलिए हम परमेश्वर से माफी मांगे, प्रभु जी हमें माफ कर कि हमने प्रभु आपके सत्य वचन को नहीं समझा और हमने अपने वचन के सत्य को भी नहीं समझा। Oh Lord, this evening we commit ourselves to know more about Lord Jesus Christ, to know more about the Word of God, and to make your heart happy. और परमेश्वर हमें मदद कर कि प्रभु जी आपके बेटे के उस ज्ञान में जो सत्य है और आपके वचन के उस ज्ञान में जो उसको हम हमारे इच्छा के अनुसार जाने, जिसके कारण हम जानकर आपके हृदय को आनंदित कर सके। May the Lord truly help us. हमारा परमेश्वर सच्चाई के साथ हमारी मदद करें। So we were trying to answer what is truth, the first question. और जो पहला सवाल है कि सत्य क्या है, And now we are going to the second question. अभी हम दूसरे सवाल में जाएंगे। What is the importance of knowing the truth? और सत्य जानने की जो महत्वपूर्णता क्या है। In John's Gospel, chapter 10 and verse 10, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 10 आयत में देखेंगे that the Lord said like this. परमेश्वर ने वहां इस प्रकार कहा, 10 का 10, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 का 10। I came so that they would have life and have it abundantly. मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। So we have two renderings there. I came to so that they may have life and they may have life abundant. और मैं दो कारणों से मैं इस धरती पे आया कि वे जीवन पाए और दूसरा कारण है बहुतायत से पाए। What does it mean when the Lord said, I came so that they would have life? उसका मतलब क्या है जब प्रभु ने कहा मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए? What is that life which is mentioned there? और वो जीवन किस जीवन के बारे में कहा गया है? Well, we know it is eternal life or it is salvation. और हम जानते हैं सब कि वो अनंत काल के जीवन के बारे में या वो उस उद्धार के बारे में कहा गया है। Okay, if life is salvation or eternal life, then what is life abundant? अगर वो जीवन जो उद्धार है या अनंत काल का जीवन है, तो फिर वो बहुतायत का जीवन वो क्या है? Is the question confusing? या वो सवाल आपको परेशान तो नहीं कर रहा? Well, I was reminded of the story of a mathematics teacher. और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ एक गणित का एक जो मास्टर था। He asked the students one day one question like this. उसने अपने शिष्यों से, अपने बच्चों से एक ऐसा सवाल पूछा, If my age is half the age of my father, अगर मेरा उम्र मेरे पिताजी के उम्र से आधी उम्र है तो, and my brother is 5 years older than me, और मेरा भाई जो 5 साल मेरे से बड़ा है, what is the age of my brother? और फिर मेरे भाई का उम्र कितना हुआ? Oh, children were perplexed, were confused. और जितने बच्चे थे वो बड़े सोच विचार में पड़ गए और बड़े हैरान हो रहे थे, ये कैसा सवाल पूछ लिया। They don't know the age of the father. If they know the age of the father, they can answer it. क्योंकि उनको पिता का उम्र नहीं मालूम था, अगर उम्र मालूम होता फिर वो जरूर उसका उत्तर दे देते। The question is, my age is half the age of my father and my brother is 5 years elder than me. Then what is the age of my brother? मेरे सवाल है कि मेरा जो उम्र है वो मेरे पिता से जो आधी उम्र है और जो मेरा बड़ा भाई है वो मेरे उम्र से 5 साल बड़ा है, क्या होगा आपका उत्तर? All were confused. सब लोग। Then one student got up and said, Sir, you are 50 years old. बोल रहा है
सर आपकी उम्र 50 साल। That surprised the teacher. He said, "It is almost correct. You have done a good guesswork." और वो सवाल सुनकर वो शिक्षक बहुत हैरान हुआ, कहता है अरे तुम तो बिल्कुल सही, बिल्कुल नजदीक में आपने ये सवाल दिया है, जवाब दिया है। Then he asked the student, how could he calculate that? और फिर उस मास्टर ने पूछा उस विद्यार्थी से, तुमने किस प्रकार इसका उत्तर दिया? He said, it is very simple. और उसने विद्यार्थी ने कहा ये बहुत आसान है। I have a brother. मेरा एक भाई है। He is half mad. Sorry? He is half mad. आधा पागल. मेरा भाई है वो आधा पागल है। And he is 25. वो 25 साल का है। So you are sure 50. और वो फिर पक्का आप 50 साल के तो होंगे। Well, I'm sure you will tell me that. वो ऐसा मत आप मुझे कह देना कि ये कौन सा सवाल हमसे पूछे। Let's go back to the question. If life is salvation, what is life abundant? और ये हमें सवाल जो पूछा है, अगर जो जिंदगी है जो यहाँ बताया है वो उद्धार है, तो अनंत जो बहुतायत की जिंदगी वो क्या है? If that life is salvation, अगर वो जिंदगी उद्धार है, life abundant is victorious Christian living. और जो बहुतायत की जिंदगी है वो है मसीही विजयी या जीवन। And the Lord said, I have come that they would have life and life abundant. और मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। That means the Lord said, the purpose of my coming, the purpose of my dying at the cross, the purpose of making salvation available for all people. और ये मेरा मकसद जो था आने का, मेरा मकसद इस धरती पे आके जो आपके लिए जीवन देने का था, और मेरा मकसद जो पूरे इंसान के आकर अपना बलिदान देने का था। The purpose is that they would be saved and also they would have victorious Christian life. और मकसद ये था कि हर एक जन उस बलिदान के जरिए उद्धार पाए, और उद्धार पाए लोग अपने मसीही जीवन में वो विजयी रूप से आगे बढ़ते जाएं। Therefore we can see here salvation. So we can see here the salvation and victorious Christian living are both equally important for the Lord. और ये हम यहाँ देख सकते हैं कि उद्धार और जो विजयी जीवन है, ये दोनों परमेश्वर के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। Therefore, the truth, the knowledge of truth will help us to lead a victorious Christian life. The truth, the knowledge of truth will give us a victorious Christian life. Can you hear me, brother? सत्य का जो ज्ञान है, अगर कोई सत्य के ज्ञान को जान ले तो जरूर आप उस विजयी जीवन को भी प्राप्त कर लेंगे। Well, in scriptures we see three-dimensional aspect of our salvation. और हम इस वचनों में हम देखते हैं तीन प्रकार का जो उद्धार बताया गया है। Three tenses of our salvation: past tense, present tense, and future tense. हमारे जो उद्धार का जो तीन काल है, एक है भूतकाल, एक है वर्तमान काल, और एक भविष्य काल का उद्धार के बारे में देखते हैं। We are saved, it is the past tense. हम बचाए गए, उद्धार पाए, वो है बीतकाल। We are saved from the penalty of sin. और हम उस पाप के मजदूर से बचाए गए। That is justification. और वो हमें वो न्याय के लिए हमें रखा गया। And that is completed once and for all.
और वो जो है न्याय हमें एक बारी, एक हमेशा के लिए एक बारी वो पूरा किया गया। We see various verses in the Bible referring to that. और हम इसके बारे में वचन में देखेंगे। We are not going to look to the verses. I just mentioned the verses. If you want to note down, you can note down. I will just mention the verses. We are not going to read that. जो आयतें बताए जा रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। Yes, brother, please tell me again. Yeah. 1 Corinthians 6 verse 11. पहला कुरिन्थियों उसका 6 का 11। पहला कुरिन्थियों Ephesians chapter 2 verse 8. इफिसियों 2 का 8। 2 Timothy chapter 1 verse 9. दूसरा तिमोथी 1 का 9। All these verses speaks about the past aspect of salvation. We are already saved from the penalty of sin. और ये सारे आयतें हमारे भूतकाल के बारे में बताया है, जो हमारे पाप का प्रायश्चित किया गया, एक ही बारी किया गया। ये उद्धार जो हमारा हुआ वो भूतकाल के बारे में बताया गया है। The second aspect of salvation is we are being saved, present tense. और दूसरा जो भाग है कि हम बचाए गए हैं, वो है अभी वर्तमान काल के बारे में। Being saved from the power of sin. और वो वर्तमान में कि हमें पाप की शक्ति से बचाया गया है। 1 Corinthians 1:18. पहला कुरिन्थियों 1:18। Romans 5:10. रोमियो उसका 5 का 10। Philippians chapter 2 verse 12. फिलिपियों 2 का 12। All these verses say about our present continuing salvation. We are being saved from the power of sin. और ये अभी वर्तमान के बारे में जो हमें उद्धार मिला है, वो अभी हमें हर समय हर पल पाप की शक्ति से, पाप के सामर्थ्य से परमेश्वर हमें बचाता है और उद्धार देता रहता है। And third aspect is we are going to be saved. The future aspect. और भूतकाल का, भविष्यकाल का जो उद्धार है, उसके बारे में कि हम बचाए जाएंगे। We will be saved from the presence of sin. और फिर हम पाप की उपस्थिति से हम बचाए जाएंगे। That is glorification. वो है महिमा के समय में। Romans chapter 13 verse 11. रोमियो 13 का 11। Romans 5:9. रोमियो 5:9 आयत। 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 16। Well, these are the few verses that speaks about our past salvation. We are going to be removed from the presence of sin. ये हमारे भविष्य का उद्धार के बारे में है कि जब महिमा में समय आएगा तब वहां पाप नहीं होगा, वहां पाप का कदापि नहीं होगा। Past aspect of salvation, justification, that is completed. जो भूतकाल का जो उद्धार है, वो उद्धार का कार्य कलवरी क्रूस में पूरा हो चुका है। The Lord has accomplished it. और प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरा कर दिया है। What we had to do was just to believe in his name and accept him as our personal Lord and Savior. और वो एक व्यक्ति क्या करता है कि इतना ही करना है कि उस प्रभु पर विश्वास करना है और उस महान प्रभु को अपने जीवन का मुक्तिदाता होकर ग्रहण करना है। Future aspect is the transformation or the resurrection that the Lord is going to do it completely. और जो भविष्य काल है कि वो जो प्रभु यीशु मसीह महिमा में आएंगे, तब उस महिमा में परमेश्वर हमें अपने साथ लेगा और हमारा जीवन रूपांतर हो जाएगा। उस समय जो है हम पाप के उस उपस्थिति से दूर हट जाएंगे। We have nothing to do with that. It is absolutely the work of the Lord. और हमें उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो काम भी प्रभु यीशु मसीह का ही है। But the second aspect, we are being saved from the power of sin.
और जो दूसरा जो कार्य है कि वो है कि हम उस पाप की सामर्थ्य से बचाए जा गए हैं, that which is going on now, और वो अभी वर्तमान काल में अभी ये हो रहा है हमारे जीवनों में, that is sanctification. और वो है हमें पूरी रीति से शुद्धता में जीना। We have a great role to play in that. और इसके लिए हमें हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य हमें अपनी इच्छा में वो करना है। Our salvation, we just believe in the Lord, that's all. हमारा जो उद्धार है वो ये कि सिर्फ प्रभु यीशु में विश्वास करना। Our glorification, we have nothing to do, the Lord will perform it. और हमारा जो महिमा के समय है उसमें भी हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह ने ही करना है वो भी काम। But our sanctification, we have a lot to do in the presence of God. हमारा जो शुद्धता का काम है वो हमें हमारे लिए बहुत कुछ करना की जरूरत है। Our sanctification will happen according to our obedience, our dedication, our cooperation with the Lord. सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रभु के उस कार्य के अधीन होकर, आज्ञाकारी होकर रहने पे ही वो शुद्धिकरण हो सकता है। Our sanctification is done by the Lord and it is done through the word of God. हमारा जो शुद्धिकरण है, जो हमारा हृदय पवित्र होने हैं, वो परमेश्वर के जरिए और परमेश्वर के वचन के जरिए ही हो सकता है। Therefore, the Lord and the word of God is included in our sanctification. वहाँ जो हमारा पवित्रतापन है वो परमेश्वर और परमेश्वर का वचन दोनों शामिल है एक व्यक्ति के जीवन में वो पवित्रता को बनाए रखना। Our submission to the Lord and the word of God. हमारा जो समर्पण है परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के वचन के प्रति जो हमारा समर्पण है। Our obedience to the Lord and the word of God. हमारा परमेश्वर के प्रति जो आज्ञाकारी है। These are the things that will help us to be sanctified. और यही वो बातें हैं जो निरंतर हमें शुद्धिकरण या शुद्ध होकर हम जी सकते हैं। The amount of sanctification accomplished in our life is proportionate to our obedience and dedication before the Lord and the word of God. और ये हमारे जीवन को शुद्ध रखने का एक ही कार्य हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन के अधीन हो और परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी हो और उसके समर्पित रीति से जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसे अपने जीवन के चाल चलन में हम जाएं तो उस शुद्धिकरण या उस पवित्रता में हम वास कर सकते हैं। We saw truth is the Lord and the word of God. हमने देखा सत्य प्रभु यीशु मसीह है और सत्य परमेश्वर का वचन है। And we saw now the sanctification happens through the Lord with the word of God. और हमने देखा कि एक व्यक्ति एक शुद्ध पवित्र जीवन किस प्रकार जा सकता है जब वो प्रभु को आज्ञा को और प्रभु के वचन को वो पूर्ण रीति से समर्पित होकर आज्ञाकारी रहता है। Now our question was, what is the importance of growing in the knowledge of truth? और जो सवाल जो था कि कैसे हमें परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ते जाना है। If our sanctification is happening by the Lord through the word of God, अगर हमारा हृदय जीवन का शुद्धिकरण परमेश्वर के जरिए पवित्र वचन के जरिए होता है, the more we know the Lord, the more we know the word of God, the more we are sanctified. जितना ज्यादा हम परमेश्वर को जानेंगे, जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे, उतना ही ज्यादा हम परमेश्वर के उपस्थिति में पवित्र कहलाएंगे।
Oh dear ones, in 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, पहला थिस्सलुनीके 4:3 में there the Lord says, for this is the will of God, even your sanctification. और ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम वो पवित्रता में जियो। Our sanctification is the will of God. हमारा जो पवित्रता करना है वो परमेश्वर की इच्छा है। That happens by the Lord Jesus Christ and through the word of God. और वो प्रभु यीशु मसीह के जरिए और परमेश्वर के वचन के जरिए होता है। When we know more about the Lord, और ताकि हम परमेश्वर के बारे में और जानें, when we know more about the word of God, और जब हम परमेश्वर के वचन के बारे में ज्यादा जानते हैं, we are more sanctified in our life. और हम अपने जीवन में और अधिक भलाई और अधिक पवित्रता में बढ़ते हैं। Then we are fulfilling the will of God in a better way. और तब हम परमेश्वर के इच्छा को पूरा करते हैं एक बहुत अच्छे रीति से। Oh my dear brothers and sisters, ओ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, it is the will of God concerning each one of us that we should be sanctified. परमेश्वर की इच्छा है हर एक जीवन के लिए We should be sanctified. ताकि हर एक जन पवित्र जीवन जिए। That can happen only when we know more and more about Lord Jesus Christ. और ये तभी हो सकता है जब हम यीशु मसीह को ज्यादा से ज्यादा हम जानें। That will happen only when we are more and more submissive to the word of God. और ये तभी हो सकता है जब हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन के समर्पित हो। Therefore, knowing the truth is very important in our life. इसीलिए सत्य को जानना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन में। So we have answered two questions mainly. तो हमने अभी दो बार जवाब दे दिया है। What is truth? सत्य क्या है? It is Lord Jesus Christ. It is the word of God. वो यीशु मसीह है और वो परमेश्वर का वचन है। What is the importance of knowing the truth? और वो सत्य का वचन का जानने का खासियत क्या है, महत्वपूर्णता क्या है? That will help us to be sanctified. और वो हमें मदद करता है कि हम पवित्र। That is the will of God concerning each one of us. और यही परमेश्वर की इच्छा है हम सबके जीवन के लिए। Oh, today, as we are in God's presence, और जैसे हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, let's sincerely tell to the Lord, और हम बड़े वफादारी से हम परमेश्वर से कहें, oh Lord, I want to be sanctified. ओ परमेश्वर, मैं पवित्र होना चाहता हूँ। I want to be more conformed to your image. और मैं आपके उस रूप में मैं ढलना चाहता हूँ। I want to be increased in the divine nature. और मैं आपके उस अलौकिक स्वभाव में बढ़ना चाहता हूँ। For that, Lord, I want to grow in the knowledge of the Lord. I want to grow in the knowledge of the word of God. इसलिए परमेश्वर, मैं आपके उस सत्य के ज्ञान में बढ़ना चाहता हूँ, और परमेश्वर वो मैं आपके उस वचन के सत्य के ज्ञान में बढ़ना चाहता हूँ। I am at your feet. Lord, help me. आपके चरणों में मैं हूँ प्रभु, मुझे मदद करते। May the Lord bless us with these words. परमेश्वर इस वचनों से हम सबों को मदद करे। God willing, we continue this study
tomorrow and day after tomorrow. और परमेश्वर की इच्छा तो हम कल भी इस शिक्षा को प्रारंभ करेंगे, कल और परसों। May the Lord bless us. परमेश्वर हमें आशीष दे। Thank you.